السلام علیکم رحمۃ اللہ. میرے سلام کا جواب وفادار رسول دے. سامعین اکرام، اللہ کا شکر ہے کہ ہم ہر بار ایسے چھپے ہوئے منافقوں کو آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں اور آپ ان لوگوں سے بچتے ہیں. اب یہ دیکھیے، یہ عظیم انصاری کا جو معاملہ چل رہا ہے، آپ اس سے بخوبی واقف ہیں. یہ اپنے چینل پہ بیٹھ کر کے ہمارے عالموں کے خلاف بولتا ہے، ہمارے عالموں کے خلاف جو ہے تبرہ کرتا ہے. اب جو مفتی اکمل کے تعلق سے معاملہ چل رہا تھا، یہ خبیث اس کے بیچ میں گھس کے اور تمام مفتیوں کو غلط کہہ رہا تھا. اب اس کی منافقت سامنے لانے کے لیے اس سے گفتگو کی گئی، تو اس ریکارڈنگ میں آپ سنو گے اس نے کتنا گھٹیا جملہ استعمال کیا. اس نے یہ استعمال کیا کہ جن مفتیوں نے اکمل صاحب کو توبہ کی رائے دی ہے کہ انہوں نے تاج الشریعہ کے شعر پہ جو انگلی اٹھائی ہے، تو تم اپنے مفتیوں کے پیچھے گھسے رہو. اس نے یہ جملہ استعمال کیا، معاذ اللہ استغفر اللہ. مطلب یہ مفتیوں سے بڑھ گیا اور اس نے ہمارے تمام مفتیوں کے تعلق سے یہ جملہ استعمال کیا ہے کہ تم اپنے مفتیوں کے پیچھے گھسے رہو. تو سامعین اکرام، میں آپ کے اوپر فیصلہ چھوڑتا ہوں، کیا ہم اپنے مفتیوں کو سر کا تاج نہیں مانتے؟ کیا ہمارے ہندوستان میں جتنے مفتی اکرام اہل سنت والجماعت احناف بریلوی کے ہیں اور پاکستان میں جتنے ہیں، کیا ہم انہیں سر کا تاج نہیں مانتے؟ اور یہ خبیث کہتا ہے تم اپنے مفتیوں کے پیچھے گھسے رہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہمارے مفتی کے خلاف ہے اور یہ مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹا ہوا ہے اور یہ جھوٹ بولتا ہے، منافقت پھیلاتا ہے اپنے چینل پر مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لے کر. پہلی بات. دوسری بات دیکھیے، ایک دیوبندی حامد کر کے ہے، اس سے یہ گفتگو کر رہا تھا، اس کے سلام کا اس نے جواب بھی دیا اور اس سے گفتگو کر رہا تھا کہ میں بریلوی کے علاوہ اور کسی کو مسلمان نہیں کہتا، یہ بات غلط ہے، میرے خلاف جھوٹی افواہ اڑائی جا رہی ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ. مطلب آج کی تاریخ میں یہ دیوبندیوں کو بھی مسلمان سمجھتا ہے، جو دیوبندی گمراہ ہے اس کو بھی یہ مسلمان سمجھتا ہے، اور جو دیوبندی کافر ہے اس کے تعلق سے بھی اس کا یہی عقیدہ ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ. دیوبندیوں کے سلام کا جواب دیتا ہے. اور ایک مفتی نے اس کو کال کیا تھا، وہ ریکارڈنگ بھی آئی ہوئی ہے میرے پاس. ایک مفتی نے اس کو کال کیا تھا، دیوبند کے مفتی نے، مناظرے کے تعلق سے. اس کا بھی سلام کا یہ جواب دے رہا ہے، جبکہ وہ مفتی یہ کہہ رہا ہے کہ میں دیوبند کا مفتی ہوں، میں عالم ہوں، اور اس نے سلام کیا، اس نے جواب دیا. اور اس آڈیو میں بھی یہ غلط تشریح پیش کر رہا ہے اعلیٰ حضرت کے تعلق سے. تو سامعین اکرام، حالانکہ بیچ میں ایک دیوبندی تھا جس کا نام حامد تھا، اس نے بات کروائی اس سے، اور ہمارے ساتھ جو ہے احمد رضا بھائی تھے. تو بات جب چلی تو اس نے اپنے منہ سے یہ جملہ کہا کہ تم مفتیوں کے پیچھے گھسے رہو. ٹھیک ہے، تو ہم یہ کہتے تھے کہ یہ منافق ہے، اس سے بچ کے رہیں، لیکن آج اس نے اپنی زبان سے یہ ظاہر کر دیا کہ ہمارے جتنے مفتی اکرام ہیں اس کے نظر میں معتبر نہیں ہے، اور اس کو جوتوں سے مارو پکڑ کے، اس کے چینل کو انسبسکرائب کرو اور اس کو خبیث کو سبق سکھاؤ بہترین طریقے سے. اور دعا میں یاد رکھو، ریکارڈنگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو. میں پھر سے کہتا ہوں، ایسے لوگوں کی حقیقت لانا ہمارا آپ کے سامنے اس لیے ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے آپ بچیں، آپ کا ایمان بچا رہے. باقی دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ہلو جی، ہاں بات کرو بھائی صاحب. ہلو ہلو، ارے عظیم بھائی، ہلو، کون ہے جناب؟ میں حامد بول رہا ہوں. آپ کا میرے نمبر سے کال نہیں لگ رہی ہے. ایکچولی ابھی بات ہوئی تھی نا میری آپ کی. اچھا جی 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 جی. ہاں، اور سنائیے، خیریت ہے؟ او یار، میرے پاس ایک بریلوی کی کال آئی تھی آپ کے بعد، تو وہ یوں کہہ رہا تھا کہ اس سے پوچھیو، عظیم بھائی سے یہ پوچھو، یوں کہ اگر آپ ابن تیمیہ اور اشرف علی تھانوی کو اگر میں مان لو مسلمان مان رہا ہوں تو پھر بھی مسلمان ہوں میں. بولا یہ پوچھو اس سے ایک بار. دیکھیں، جی 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 بالکل صحیح آپ جو پوچھ رہے ہیں، بالکل صحیح ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے امام اعلیٰ حضرت نے اشرف علی تھانوی صاحب کو اوپر فتاویٰ دیا ہے کہ وہ کافر ہیں ان کے کچھ عبارات کی وجہ سے. آپ کو جو فتاویٰ دیکھنا ہے تو فتاویٰ، یہ جو کتاب ہے ان کی، حسام الحرمین، سمجھ رہے ہیں؟ حامد بھائی ذرا ان سے پوچھو کہ جو شیعہ رافضی جو صحابہ پہ تبرہ کرتے ہیں، جو اجمیر میں مجاور ہیں، یہ بھی مسلمان ہیں؟ اور جو اہل حدیث ابن تیمیہ صدیق حسن بھوپالی کو مسلمان مانتے ہیں، یہ بھی مسلمان ہیں یا یہ کافر ہیں؟ اور جو ایک ایک چیز پوچھیے، میں جواب دیتا ہوں.
अच्छा, ये जो शिया रावजी जो मुजावर हैं, जो अपने आप को मौलाई कहते हैं, जो हजरत अमीर माविया पे तबर्रा करते हैं और सहाबा इकराम पे तबर्रा करते हैं, ये कौन है? ये बिल्कुल पक्के गुमराह शख्स हैं जो अब हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे भोगते हैं। वो जहन्नमी कुत्ते हैं वो लोग, क्योंकि वो सहाबी हैं। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। और ये दूसरा, ये जो अहले हदीस जो समझ रहे हैं, कातिबे जी जी जी, मैं समझ गया। तो ये जो इब्ने तैमिया को मानने वाले और ये अहले हदीस जो अपने आप को ये भी गुमराह है। आला हजरत ने फतावा सुनिए, आला हजरत ने फतावा रज़विया जिल्द 21 सफ़ा नंबर मतलब ये हुआ कि जो मसलक आला हजरत को आज की तारीख में माने, जो मसलक आला हजरत को आज की तारीख में मानता है, सिर्फ वही मुसलमान है। बाकी जो ये देवबंदी जो देवबंद के पीछे चलते हैं और जो उनके अकाबिर को मुसलमान मानते हैं, सिद्दीक हसन भोपाली को अकाबिर मानते हैं, और जो ये मतलब ये सब के सब गुमराह काफिर हैं। देखें, हमारे इमाम ने और हमारे अकाबरीन ने इन पर गुमराही का फतवा दिया है और कुछ पे तो कुफ्र का फतवा दिया है। किसके ऊपर गुमराही का फतवा दिया है? इब्ने तैमिया पे गुमराही का फतवा है। ये इस्माइल दहलवी पर कुफ्र का फतवा नहीं है, तुम्हें पता हो तो बताऊं मैं तुम्हें। इसके ऊपर इस्माइल दहलवी गुमराही का फतवा मौजूद है। सुनिए ये फतवा ताजुल शरिया और बात सुनिए अल कौकतु शहाबिया अल वहाबिया में आला हजरत ने इस्माइल दहलवी पे कुफ्र का फतवा दिया। किताब पढ़ लीजिएगा। और एक शेर है आला हजरत का, सुनिए एक मिनट इस बात को फिर दोहराइए। अल कौकतु शहाबिया किताब पढ़ी है? नहीं पढ़ी ना। दूसरी चीज ये फतवा ताजुल शरिया में आपको इस्माइल दहलवी पे कुफ्र का फतवा नहीं मिला? नहीं मिला मुझे। अच्छा, मुफ्ती आजम हिंद की किताब में आपको कुफ्र का फतवा नहीं मिला शाह इस्माइल दहलवी पर? नहीं मिला। कुफ्र का फतवा नहीं मिला। तो यही तो आप लोगों की दिक्कत है ना, तहकीक नहीं करते हैं आप और गुमराह यार। अगर मैं तो बता तो रहा हूँ, अगर उन्होंने फतवा दिया है तो मैं इसे इनकार भी नहीं करूंगा, क्योंकि वो हमारे अकाबरीन हैं। बात खत्म हो गई। हामिद भाई, अभी जो ये आपसे कह रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं सबको मुसलमान मानता हूँ, हो गई बात क्लियर? अरे फिर वही जहालत वाली बात यार। तो मैं क्या कह रहा हूँ, पूरी बात सुनोगे? मैं पूरे बरेलवी देवबंदियों को गुमराह नहीं मानता, क्योंकि पूरे देवबंदी मुतलकन काफिर नहीं है। पूरे देवबंदी मुतलकन काफिर नहीं है। अब सुनो मेरी बात। आपने कहा कि मैं पूरे देवबंदियत को गुमराह नहीं कहता। भाई साहब, वो देवबंदी गुमराही कहलाएगा जो इनके पीछे जाता है। वो काफिर का फतवा उस पर जब लगेगा जब वो इनको मुसलमान मानेगा और उससे हट जाएगा। और जो इनके पीछे जाएगा उसको गुमराही कहा है हमारे आलिमों ने। देवबंदी जो आला हजरत ने जमातियों के पीछे चलते, सुनो मेरी बात, दिए है ना, अरे इनको नहीं मानते। इधर सुनो, मेरे पास भी देवबंदी लोग हजरात हैं, वो भी बात करते हैं मुझसे। वो लोग नहीं मानते हैं फतवों को, ना मानते हैं वो उनके कौल को। समझ रहे हो? वो अशरफ अली थानवी के कौल को खुद नहीं मानते। अजीम भाई सुनो, आपको इल्म नहीं है, मैं आपको मशवरा दूंगा। पहले ये बताओ, इल्म सीखो। सवाल किया ना, तुमने एक सवाल और रह गया अभी। एक सवाल और रह गया। बिल्कुल करना। पहले एक सवाल और मेरा होना है दो। जो शख्स हाँ जो शख्स कम इल्मी की वजह से इनके पीछे जाता है, जमातियों के पीछे जाता है, भले से अगर इन जमातियों के अशरफ अली थानवी को वो ना माने, कासिम नानोतवी को वो ना माने, फिर भी इनके पीछे जाके इनके पीछे नमाज पढ़ता है, तो जो नमाज पढ़ाता है वो तो मानता है ना, तो इसको गुमराही कहा जाएगा। काफिर का फतवा नहीं लगेगा। कुफर का फतवा जब लगेगा, मन शक्का फी कुफर ही वजाब ही फकत कफर। वही चीज तो मैं भी कह रहा हूँ। तुम तो कह रहे हो उनको गुमराह भी नहीं कहा जाएगा। तुम तो तुमने इस रिकॉर्डिंग में गुमराह के 1 मिनट में तो यही कह रहा हूँ यार, तुम लोगों को तुम नहीं रहे हो। मैं यही कह रहा हूँ कि किसी के काफिर नहीं कह सकते। अब मेरी सवाल सुन लो। एक काम और बताया अजीम, अगर गुमराही पे उसकी मौत हो गई तो फिर क्या होगा? नहीं सुनूंगा। तुमने रिकॉर्डिंग बंद कर दी ना? तुमने रिकॉर्डिंग नहीं, मेरा सवाल नहीं, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं बंद करी। तुमने लाया इसको लाया है, ये मेरी सवाल को नहीं सुनेगा? अरे अजीम भाई सुनो, मैं सुनूंगा आपके सवाल के। मैं बिना सुने आपका फोन नहीं काटूंगा बाखुदा। हाँ, मैं बिना आपका सवाल सुने बाखुदा फोन नहीं काटूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उसकी गुमराही पे मौत हो गई, अगर उस बंदे की गुमराही पे मौत हो गई तो उसने तौबा नहीं की, अगर गुमराही पे मौत हो गई तो क्या उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी, हाँ या ना? अरे तो बिल्कुल पढ़ी जाएगी यार, क्योंकि उसको पता नहीं था उसके बारे में ना, गुमराह था ना, वो काफिर तो नहीं था।
تو حدیث کی روشنی میں تو وہ چلا گیا نا. اللہ کے رسول نے فرمایا ہر ایمان والوں پہ مسلمانوں پہ فرض ہے دین کا سیکھنا, تو جس نے سیکھا نہیں تو وہ تو چلا گیا نا گمراہی میں. ایک منٹ تم یہی چیز مجھے بتاؤ کہ جو اگر ایک منٹ سن لو اگر تمہارے باپ نے کبھی تمہاری ماں کو غلطی سے طلاق دے دی, غور سے سننا میری بات کو, غلطی سے طلاق دے دی اور پھر تمہارے ماں کے ساتھ رہا اور اس سے جو بچے پیدا ہوئے ہیں, سن لو جو بچے پیدا ہوئے ہیں, اب جب تمہارا باپ مرے گا تو اس کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ اب میری بات سنیے, یہ گناہ کبیرہ کو آپ گمراہی میں لے گئے. سنو یہ گناہ کبیرہ ہے, سنو یہ گناہ کبیرہ ہے. کے بارے میں جواب دو مجھے, تمہارے باپ کا نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں؟ دے رہا ہوں. اگر کسی نے اپنی بیوی کو ڈیورس دے دیا, طلاق دے دیا, اور اس کے بعد بھی اس کے ساتھ زنا کیا, تو اس کے اوپر حکم کیا لگے گا؟ کفر کا لگے گا, گمراہی کا لگے گا, جاہل آدمی. ابے یہی چیز میں کہہ رہا ہوں, تمہارے باپ نے طلاق دی اور اس کے ساتھ رہا تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں؟ نہیں, میرے سوال کا جواب دو تو اس کے اوپر حکم کیا لگے گا؟ پہلے میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے ہو یار, تم میرے سوال کا جواب دو پہلے. حکم ارے تم پہلے بتاؤ مجھے بتاؤ اس پہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی, اس پہ حکم کیا لگے گا؟ نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں؟ حکم کیا لگے گا؟ گمراہی کا لگے گا. ارے یار ہمیں پھر وہی آدمی ہو تم. ابے یہاں پر کفر کی اور شرک کی اور گمراہی کی بات ہو رہی ہے, اور تم گناہ کبیرہ میں لے کے جا رہے, گناہ صغیرہ میں لے کے جا رہے ہو. ارے اس نے گناہ کیا ہے, وہ گناہ کی سزا الگ ہے. اس نے کیا کلمے کا انکار کر دیا کیا؟ ہلو بھائی تم جاہل گھامل ہو, تم کو دھیرے کا علم نہیں ہے, بکواس کرتے ہو. حکم بتاؤ, حکم کیا لگے گا؟ تم بتاؤ کیا حکم لگے گا؟ یار میں تم سے سوال کر رہا ہوں. ابھی تو اس سے حرام کاری کا حکم لگے گا, زنا کاری کا لگے گا. ہاں تو زنا کاری کرنے والا گمراہ ہو جاتا ہے اور کافر ہو جاتا ہے. سلا جاہل کہیں گا. ارے ابے چوتیا آدمی میں یہی پوچھ رہا ہوں, تو میں تجھ سے کیا پوچھ رہا ہوں, وہ گمراہ ہو گیا. اس پہ حکم جو لگے گا وہ زنا کاری کا لگے گا نا, زنا کاری کا لگے گا, اور اس پہ گناہ کبیرہ لگے گا. تو اس کو گناہ کبیرہ کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. ہاں اب یہ سنو, یہی آدمی بیوقوف آدمی ہے, گناہ کبیرہ والا. سنو, ہاں تو گناہ کبیرہ کرنے والا. اب یہ بتائے, سن گناہ کبیرہ کی معافی نہیں ہوگی کیا میدان محشر میں؟ جو گناہ کبیرہ کر کے جائے گا. میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے ہو. میں جو کفر کا مرے گا اس کی معافی ہے. یہ میرے سوال کا جواب سالا جاہل آدمی ہے, پتا نہیں کہاں سے سیکھ کے آیا ہے. بھائی یہ جواب دے گا یا نہیں دے گا؟ تو دے تو دیا جواب. کیا جواب دو؟ جواب اس کا یہ ہے, ہاں سنو, جواب اس کا یہ ہے, جواب پورا. حامد بھائی سنو, اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ زنا کیا, ٹھیک ہے, تو زنا کاری کی سزا قرآن میں ابھی وہی سوال کا پھر میں سوال یہ ہے کہ اگر میں پرسنل میں کسی سے بات کیا اور بنا اس کی اجازت کے بغیر اس کا جو آئیڈیو ہے میں نے یوٹیوب پہ ڈال دیا, سوال کو بدل دیا اس نے. اب سوال کو بدل دیا, آپ بتائیے. اچھا میں دیتا ہوں حکم کیا ہے؟ اب دیتا ہوں, حکم کیا ہے مجھے بتاؤ. اب میں دیتا ہوں حکم. اب حکم تمہارے پہ لگے گا. اب سنو کیسے لگے گا. حدیث سے دے رہا ہوں, دھیان سے سننا. ہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کیا کہ اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا. حضرت عمر سے حضرت ابو بکر صدیق نے بات کی اور کہا ان سے جنگ کی جائے گی. ٹھیک ہے, اس کے بعد ان سے جنگ ہوئی, اور جتنے منافق جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے وہ نماز بھی پڑھتے تھے, روزہ بھی رکھتے تھے, حج بھی کرتے تھے, لیکن زکوٰۃ سے انکار کر دیا. ان کی پہچان کرائی گئی کہ دیکھو یہ شخص ہے, یہ شخص ہے, یہ شخص ہے, یہ شخص ہے. خاموش خاموش, ایک منٹ میں تجھے منافق لگتا ہوں. ابھی رک, اس کی پہچان کرائی گئی. تجھے دکھاؤں گا. چپ تجھے تو اس کی پہچان کرائی گئی. تو جب پہچان کرائی گئی تو جب ان کی جماعت بنی, علیحدہ ہوئی, تو اس سے جنگ ہوئی جس میں 10,000 صحابہ شہید ہوئے. اب مجھے تو یہ بتا, گھامر آدمی جس کے اوپر کفر کا فتویٰ ہے آج کی تاریخ میں, تو نے اس کی ویڈیو ڈالی طاہر الپادری کی اور اس سے رجوع نہیں کیا, توبہ نہیں کیا, تو میں اس کو کیا سمجھوں؟
मैं धामड़ आदमी, उससे मैं बार बार कह चुका हूँ कि जो गुमराह है हमारे यहाँ के उलमा ने उन पर गुमराही का फतवा लगाया है। तब भी मेरा वीडियो पर्सनल वीडियो बात हो रही है, पर्सनल बात को सरेआम क्यों ला रहा है? ये मुनाफिकत है या नहीं? अब देख मैं तेरे खिलाफ कैसे मैं कंप्लेन चलाता हूँ, अब तुम लोगों ने जो मेरे खिलाफ कंप्लेन चलाया है ना, अबे तो सुन तुझे गुमराह क्यों बोला मैंने वो सुन। भागना मुझे फोन काट के भागना नहीं। अबे तुझे गुमराह नहीं, इसलिए बोला, कहता है राबजी कहता है, मैं बता रहा हूँ ना, सुन तुझे राबजी इसलिए बोला, आदमी अबे सुन सही सुन्नी को उन्हें राबजी नहीं सुन रहा है, नहीं आती। हामिद भाई देखो नहीं सुन रहा है, हामिद भाई देखो नहीं सुन रहा है। अजीम भाई तुझे मैंने राबजी तो वजाहत करने देना, वजाहत करने दे, वन करके चलते हैं। हाँ देखो मैंने तुझको रावजी इसलिए बोला कि तूने ताहिरुल पादरी की जो अपने चैनल पे वीडियो डाली बिना तहकीक उस पर रुजू नहीं किया और तूने माफी नहीं मांगी आवाम से, साले किया तो तुझे मुनाफिक नहीं बोलूंगा, तुझे रावजी नहीं बोलूँ। मैंने कहाँ बताया अपने चैनल पे, कहाँ बताया तूने रुजू कहाँ किया? तूने रुजू किया है और उस वीडियो को मैंने प्राइवेट भी किया है, तब ये मुझे राबजी क्यों कहा है? उसके बाद के बच्चे सुन आज 25 दिन हो गए, तूने ताहिरुल कादरी के रद में वीडियो डाली? अब 1 मिनट मुझे बता, मैं आज रद में वीडियो बनाऊं तो तू रुजू करेगा उस बात से, तो मुझे तूने वो राबजी का है। अब सुन 1 मिनट सुन तो पहले पूरी बात को सुन तो अगर मैं ताहिरुल कादरी के खिलाफ वीडियो बनाऊं तो तू रुजू करेगा, जो तूने मुझे राबजी का है रुजू करेगा उससे? तू पहले मुझे बता, ताहिरुल कादरी मुसलमान है काफिर है? वही बात पहले तू ये बात का क्लियर कर, मैं अगर मुसलमान करूँ तो ये मुझे राबजी जो कहा है ये तौबा करेगा, रुजू करेगा अपनी बात से? चल ठीक है। अब मैं तुझे एक चीज बता रहा हूँ कि जो मुफ्ती, अब तो ये चीज तो तेरे से हटेगी, दूसरी लगेगी, जो मुफ्ती अकमल के ताल्लुक से बड़े बड़े मुफ्ती इकराम ने फतवा दिया है उसको उसके ऊपर और उसके ऊपर जो जरा की है, तूने हमारे बड़े बड़े आलिमों के ऊपर जरा करके ये अच्छा काम किया। 1 मिनट तू वहाँ पे ना जाए, 1 मिनट भाई, ऐसे बोलो क्यों नहीं जाए? पहले वीडियो बनाई टॉपिक पे हूँ ना। देखो अच्छा हामिद भाई एक बात बताओ, हामिद भाई इसको खामोश करो। आपका नाम क्या है यार? मैं भूल गया, क्या नाम है आपका? हामिद अंसार, हामिद अली, हामिद भाई आप बीच में है ना, आप इनसे पूछो कि मैं अगर ताहिरुल कादरी के खिलाफ वीडियो बनाऊंगा तो ये जो मुझे राबजी कहा है इससे तौबा रुजू करेगा या नहीं? चलो ठीक है। तो जो तूने हमारे आलिमों के खिलाफ अभी तूने बकवास, बिल्कुल जो इसने मेरे आलिमों के खिलाफ, जो इसने मेरे आलिमों के खिलाफ बकवास किया उससे रुजू करेगा? खिलाफ मैंने बोला है, बता तो जिसने मुफ्ती अकमल के ताल्लुक से कलम उठाया तूने उनका रद्द किया, क्यों किया तूने रद्द? मैंने रद्द नहीं किया, सुन ले ढामर आदमी, मैंने कहा इल्जाम लगाया जा रहा है, मैंने कोई बात नहीं की है। उनका वीडियो मौजूद है, सुन ताजु शरिया के इस शेर को तू क्या समझता है? हामिद भाई इसीलिए आप लाए थे इसको, कितना बड़बड़ कर रहा है अजीम अंसारी। देखो कितना बड़बड़। अगर मैंने वीडियो अपलोड कर दी तो जमशेद अली कादरी तौबा रुजू करेगा। चलिए आप उसके रद्द में वीडियो रुको हमने ताल्लुक से तुम्हारे रद्द में हम डिलीट कर देंगे सारी वीडियो। अरे मैं वही बोल रहा हूँ, रुको, तेरी जितनी ताहिरुल पादरी के ताल्लुक से हमने वीडियो अपलोड की उसको हम डिलीट करेंगे, लेकिन जब तक तू तौबा नहीं करेगा, तूने हमारे आलिमों के ताल्लुक से जो बकवास की है बैठ करके, कौन से आलिम से बकवास किया यार? तू बता तो पहले, हामिद भाई से पूछो कौन से आलिम से बकवास किया है? रुको हामिद भाई आप ये बता मुफ्ती अकमल ने जो ताजु शरिया के, हाँ मैं बता रहा हूँ, मुफ्ती अकमल ने जो ताजु शरिया का शेर बोला है वो सही बोला है या गलत बोला? तेरा उसमें क्या ईमान है? वो शेर सही है गलत है? हामिद भाई आप सुनिए मेरी जवाब, हामिद भाई जवाब सुनिए। हाँ सुनिए। हामिद भाई इससे पूछिए कि मुफ्ती अकमल साहब ने ताजु शरिया रहमतुल्लाह अलैह के जो शेर है उस पर कोई हुक्म लगाया है या उसे एतराज किया है, इनकार किया है? पूछो। देखो जाहिल, अबे हमारे बड़े बड़े मुफ्ती स्टेट पे कह रहे हैं कि उसको हमने वहाबियों के पीछे नमाज पढ़ने लगा था। चुप हामिद भाई इससे पूछो, उन्होंने इनकार नहीं किया है, ना एतराज किया है। उन्होंने कहा है इस शेर को अगर पढ़ा जाए तो तशरीह भी इसकी की जाए, क्योंकि लोग गलत मतलब निकालते हैं, उन्होंने ये कहा है। उन्होंने ताजु शरिया की कोई बात नहीं रद्द करने वाले मुफ्ती हैं तेरे नजर में वो बेवकूफ है, वो जो रद्द कर रहे हैं बड़े। हामिद साहब ये इसने जो बात बोली ना अभी, सुनो मेरी बात, इसने जो बात बोली ना अभी कि जितने ताजु शरिया के शेर की तस्रीह की जाए, तो इस घामड़ से पूछो कि आला हजरत के इतने कठिन इतने मुश्किल आला हजरत के कलाम है
क्या उसकी भी तस्वीर करनी चाहिए? साला जाहिल कहीं का। एक मिनट सुन लो यार, 1 मिनट। इन पर क्या हुक्म मुझे बताओ, मतलब पता उन्होंने इस शेर का उन्होंने इनकार नहीं किया। उन्होंने शेर है कि आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं, उन्होंने इसका इनकार किया है, कहीं पे एतराज किया है नहीं। हमारे मुफ्ती ने रद्द क्यों किया यार? तो हमारे मुफ्ती ने रद्द क्यों किया? हमारे मुफ्ती ने रद्द क्यों किया? यार तुम्हारे मुफ्ती, यही मुफ्ती जो सूफी कलीम हनफी है, इसने मुफ्ती आजम के फतवे के कौन फतवा दिया है? क्योंकि मैंने वीडियो बनाई है। कहाँ से कहाँ भाग रहा है? मैं अभी बात कर रहा हूँ, जितने पाकिस्तान के बड़े बड़े उलमा उन्होंने उसके ऊपर जरा किया। अभी सूफी कलीम के पास भाग गया। तू सूफी कलीम रिजवी के पास क्यों भाग गया? मुफ्ती आजम का फतवे तो रख सकता है। मुफ्ती आजम का फतवा तब नहीं दिखता। तब तुम लोगों को तब नहीं इसको बोलो 1 मिनट ये बोलेगा, 1 मिनट मैं बोलूंगा, मेरे बीच में नहीं बोलेगा। इसको 1 मिनट बोलने दो। अजीम भाई बिना तस्वीर इसको 1 मिनट बोलने दो। इतना मोबाइल मत, इसको 1 मिनट बोलने दो। इसको 1 मिनट बोलने दो। 1 मिनट बोल ले। 1 मिनट आप बोल रहे, 1 मिनट ये बोल रहे। बोलो। हाँ बोलो। मैं कह रहा हूँ, सुनो, मैं कह रहा हूँ कि ये सूफी कलीम हनफी ने मुफ्ती आजम के फतवे के खिलाफ फतवा दिया, तो इस पर कोई वावेला नहीं, कोई शोर नहीं मचाया जा रहा है। लेकिन यही ये अपने मुफ्ती अकमल साहब ने एक शेर पे, और वो भी एतराज नहीं किया, कोई इनकार नहीं किया। उन्होंने बस ये कहा कि इसको अवामुन नास में पढ़ोगे तो लोग गलत नताइज इसके निकालते हैं, तो लिहाजा इसको बिना तशरीह की इसकी ना पढ़ी जाए तो ज्यादा बेहतर है। उन्होंने कोई इनकार नहीं किया, ना कोई गुस्ताखी की, तब ये लोग इतना शोर मचा रहे हैं। और यही सूफी कलीम हनफी ने मुफ्ती आजम के फतवे के खिलाफ फतवा दिया, तो इसको नहीं सुन रहे हैं, उसको नहीं, वो नहीं समझ आ रही। चलो हो गया, इसका 1 मिनट हो गया, इसको खामोश करो। 1 मिनट हो गया। हाँ हामिद भाई, अल्लाह की लानत हो झूठों पर। मुफ्ती सूफी कलीम रिजवी साहब ने तो इसका रद्द ही नहीं किया। पहली चीज, इसका रद्द किया पाकिस्तान के जो जितने बड़े बड़े उलमा इकराम हैं उन्होंने रद्द किया, पहली चीज। दूसरी चीज ये, उन्होंने 3 स्टेटमेंट दिए। आजिम भाई नहीं, मैं क्लियर करवा रहा हूँ किसका रद्द नहीं किया, वो तेरा रद्द नहीं किया। चुप हो जा। देखो फिर कलीम हनफी ने अपनी बारी तेरा रद्द अपनी बारी पे अपनी बारी में वीडियो अपनी प्राइवेट किया हूँ, अपनी बारी में बोल, अपनी बारी में बोलो यार, अपनी बारी में बोल, अपनी बारी। हाँ अपनी बारी बोलूंगा। चलो इसने 3 झूठ बोले। पहली चीज ये कि जो वहाँ पाकिस्तान के बड़े बड़े मुफ्ती इकराम है, ठीक है, उनमें से एक का वीडियो है मौजूद है। उन्होंने ये कहा कि ये अकमल साहब का ज़हनी तकाजा खराब हो गया था, ये वहाबियों के बीच में जाके नमाज पढ़ने लगे थे, तकरीर करने लगे थे, हमने इनको तौबा करवाई। उसके बाद इन्होंने फिर एक वावेला मचाया कि ये खवातीनों के बीच में जाके तकरीर करने लगे, फिर भी हमने इनकी तौबा करवाई। उसके बाद फिर इन्होंने जो ये नया सोसा छोड़ा है ये शेर का, इस पर तो जरा बनती नहीं है, ना इस पे कोई कलाम बनता है, क्योंकि आला हजरत के इतने मुश्किल शेर हैं, अगर सबकी शरह करने बैठेंगे और सबकी समझाने बैठेंगे तो फिर महफिल कैसे होगी? तो इसकी जरा बनती नहीं, ये जहालत है, उनको रुजू करना चाहिए, तौबा करना चाहिए। ये मुफ्ती ने फतवा दिया, ये जाहिल कहाँ का मुफ्ती है? ये घामड़ कहीं का। चुप हो गया 1 मिनट हो गया ना। मेरे बीच में बोल के इसने टाइम ले लिया था, मेरे बीच में बोल के तुमने टाइम ले लिया था। वो 15 सेकंड जोड़ सुनो, अब सुनो। हाँ अब सुनो, अब यहाँ पर जो ये कह रहा है, ये जो कह रहा है कि सूफी कलीम हनफी साहब ने मेरे खिलाफ वीडियो पर नहीं बनाई, मेरे चैनल पर मौजूद है और मैंने उसको प्राइवेट किया है, मैं उसको यानी फिर से उसको अनलॉक कर सकता हूँ, पहली बात। हाँ, और इसको अगर देखना है तो मैं इसको दिखा सकता हूँ। और दूसरी बात सुनो, ये जो मुफ्ती अकमल साहब हैं, इन्होंने हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह अलैह के कलाम से कोई इनकार नहीं किया, कोई इनकार भी नहीं किया और इसे एतराज भी नहीं किया, तो उन पर तौबा किस बात की होनी चाहिए, मैं ये पूछना चाहता हूँ। चलो हो गया। अभी मैंने इतनी लंबी चौड़ी जो वजाहत की, कान में तेल डाले हुए थे क्या? जब हमारे फिर भी से बोल रहा है, वजाहत सुन लेंगे, तू कितना वजाहत किया है लोग। इसी की आदत यही है। जब हमारे 12 मुफ्ती इकराम ने इस बात को कह दिया कि ये जो तुमने बात कही है स्टेट पे, ये गलत कही है, इससे रुजू करो, तौबा करो, तो हम उनके खिलाफ नहीं जा सकते, पहली चीज। दूसरी चीज ये, अभी तक इसने ये नहीं कहा है कि ताहिरुल कादरी को ये मुसलमान मानता है या काफिर। मैं इससे फिर मुतालबा कर रहा हूँ, ताहिरुल कादरी को काफिर बोल। तो अगर तूने कुफर से वीडियो अपलोड की, बहुत उतावला होता है,
मिर्गी की बीमारी चढ़ जाती है तेरे को। जब तक तू ताहिरुल कादरी के ताल्लुक से सुनो 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 जुबान संभाल कर बात करना बेटा। देख मैं तेरा बेटा हूँ। इल्ली हाँ तो तुम क्या कह रहे हो, मुझे ये नहीं सुन रहे हो, मैं नहीं सुन रहे हो। इल्मी गुफ्तगू करो ना। जब सुनो सुनो जब 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 तक तू ताहिरुल कादरी के ताल्लुक से कुफ्र का वीडियो नहीं डालेगा तब तक तेरी वीडियो मैं अपलोड करता रहूंगा। और जो तूने हमारे आलिमों का रद्द किया है अकमल मुफ्ती अकमल के ताल्लुक से, जो तूने अपने चैनल पे थनबल बनाया है, उनको ऐसे क्रॉस करके उससे रुजू तौबा नहीं करेगा जब तक तेरी पिटाई होती रहेगी बेटा। अच्छा अब मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। सबसे पहले मैं अपने सुन लो, मैं बोल रहा हूँ, ये जितने भी लोग सुन रहे हैं, इस आइडियो को सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मुफ्ती अकमल साहब ने जो हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह अलैह की जो एक कलाम में से शेर है कि आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं, इस पर मुफ्ती अकमल साहब ने कहीं पर इनकार किया है इसका या कहीं एतराज किया है? नहीं। क्या कहा है कि आवामुन नास में अगर ऐसे शेर पढ़े जाएं, इतने गहरे शेर पढ़े जाएं, ऐसे जुमला कहा है, इतने गहरे शेर पढ़े हैं तो मतलब लिखे हैं, अगर इसको आवामुन नास में बिना तशरीह की पढ़ी जाए तो वो गलत इसके नताइज और गलत मायना निकालते हैं। तो क्या इस वजह से उन पर तौबा लाजिम होता है? पहली बात। और दूसरी बात, ये अपने यहाँ के जो पाकिस्तान के ये क्या नाम है ताहिरुल कादरी है, ताहिरुल कादरी के खिलाफ जितने भी हमारे अकाबरीन ने फतवा दिया है, हमारे अकाबरीन ने, मैं उससे मुतमईन हूँ और उससे राजी हूँ। अब क्या जरूरी है कि मैं वीडियो बनाकर उसको काफिर कहूँ? जरूरी है क्या? मैं हो गया हामिद भाई, एक मिनट पूरी बात सुन लो। खामोश हो जाता हूँ। ताजुल शरिया रहमतुल्लाह अलैह हैं, ये ताहिरुल कादरी को गुमराह का फतवा दिए हैं, बोले हैं कि इसकी बातें गुमराह। खामोश करो। हो गया हाँ, उन्होंने काफिर का फतवा नहीं दिया है, वो कहा है कि उन्होंने फिर बोल रहे हैं की बातें जो है हो गया। बोलो। हाँ देख लीजिए सामने निगरान, मैंने इससे 3 मुतालबे किए। पहली चीज तो ये है कि जब हमारे आलिमों ने ये फतवा दे दिया, जब हमारे, अब सुनो, सुबह मेरी इसके ताल्लुक से मुफ्ती शहजाद आलम साहब से बात हुई। मुफ्ती शहजाद आलम साहब ने बोल तो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा तेरे को। उन्होंने ये कहा कि ये जाहिल जो बैठा अजीम अंसारी, इसको तमीज नहीं है कि किस आलिम के बारे में बोलना चाहिए, किस आलिम के बारे में नहीं बोलना चाहिए। इसको बिल्कुल कौड़ी भर का तमीज नहीं है और ये बैठता रद्द करने के लिए। मुफ्ती अकमल के ताल्लुक से जितने भी अहले सुन्नत वल जमात के उलमा है अभी के, सब ने उनको तौबा की राय दी है, सब ने, एक भी ऐसा नहीं जिसने नहीं। और तू घामड़ सारे उलमा के खिलाफ जा रहा है, तू खबीस कहीं का। 1 मिनट बस हो गया, 1 मिनट हो गया भाई, आवाम को गुमराह करता है तू। 1 मिनट हो गया। जब हमारे सारे मुफ्ती कराम ने एक तरफ होकर के ये कह दिया, अभी जब सुन, इस पे मुफ्ती अकमल साहब का कोई स्टेटमेंट आया कि मैं तौबा नहीं करूंगा, हो गया उनका जो तू उनकी सपोर्ट अमित भाई हो गया। हो गया अमित भाई 1 मिनट हो गया। 40 सेकंड में खामोश। सुनो, जवाब सुनो, जवाब सुन लो। मुफ्ती जो जितने भी मुफ्तियाने कराम, इन पर 40 सेकंड में, 1 मिनट सुन लो। जितने लोगों ने ये मुफ्ती अकमल साहब को, अब जवाब सुन लो, मैं आवाम से कहना चाहता हूँ, मुफ्ती अकमल साहब ने हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह अलैह के शेर पर ना एतराज किया, ना इनकार किया और ना उस पर जितने मुफ्ती है सबने तौबा की राय दी है ना। अब मैं बताता हूँ, मुफ्ती कलीम, हालांकि उन्होंने शेर की वजाहत कर, मेरे मिनट में घुस रहा है, हामिद भाई मेरे मिनट में घुस रहा है मेरे टाइम। तो तू नहीं घुसता क्या मेरे मिनट में? मेरा पूरा मिनट ले लेता है तू। पूरा सुन लो। अब सुनो, तुमने मुझे रोका है, सुन लो। अब ये मुफ्ती अकमल साहब ने हुजूर ताजुल शरिया के शेर पर कोई एतराज नहीं किया, सिर्फ वजाहत के लिए तेरे कहने से थोड़ी होगा, लेकिन यही सुन लो यार, यही मुफ्तियों ने कह दिया, मुफ्ती शहजाद आलम ने कह दिया, मुफ्ती असद रजा साहब किबला ने कह दिया,
एक मिनट हामिद भाई, इस तरीके से बात नहीं होगा, ये मेरे टाइम में हमारे मुफ्तियों ने जब कह दिया, राय दे दी कि इनको तौबा करनी चाहिए, तो तू कौन बोलने वाला? आदमी हो, तू कौन बोलने वाला हैं क्या? लोग समझते हैं, लोग बेवकूफ नहीं है, तुम मुफ्तियों के पीछे ना घुसो। एक मिनट, मुफ्तियों के पीछे ना जाओ। सामिन इसने कह दिया, आपने मुझसे कुफ्र बक दिया कि मुफ्तियों के पीछे ना घुसो। सुन लो, लोग समझते हैं कौन नहीं बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। तुम मुफ्तियों के पीछे ना घुसो, ये मुफ्ती ने कह दिया। अरे लोग समझते हैं यार, लोग इतना समझदार है कि कौन गलत बोला है। मुफ्ती अकमल साहब ने कहीं अगर उनका इंकार किया उस शेर का, कहीं पर उस पर एतराज किया हो तो बताओ। मतलब ये हो गया कि तू आज की तारीख में तुम मुफ्तियों से आगे चला गया। ये बताओ, एक मिनट, और उसके बाद तुम ये बताओ, तुमने बिना मेरी इजाजत के मेरा नंबर, जो पर्सनल नंबर था, उसको क्यों शेयर किया? मुनाफिक है तू, छुपा हुआ देख रहे हो हामिद भाई, देख रहे हो तूने जो अभी अल्फाज इस्तेमाल किए कि मुफ्तियों के पीछे ना जाओ, अल्लाह इस्तेमाल की है, लाना तो तेरे पर। तूने लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह की लानत तो झूठों पर। मुफ्तियों के पीछे ना घुसो, तूने कहा इसी रिकॉर्डिंग में, हरामखोर। हाँ मैं कह तो रहा हूँ, तू सिर्फ झाल अपना बना रहा है मुफ्तियों के पीछे जाके। देखिए सामिन इकराम, इसने मुफ्तियों का इनकार कर दिया, मैंने हो गया है, तू ढाल बना रहा है, जवाब तो दे नहीं रहा है। तू मुझे जवाब देना, उन्होंने इनकार किया है। तू सिर्फ ढाल बना रहा है, मेरे मुफ्ती ने कह दिया, भला मुफ्ती ने कह दिया। अरे यही तू की तलीम हनफी ने मुफ्ती आजम के फतवे के खिलाफ पकड़ दिया। आप देख बेटा मैं क्या करता हूँ, तुम लोग मुझे ना, तो मुफ्तियों से बढ़ गया तरीके से ला रहे हो ना। अब देख खंजीर, अबे खंजीर के बच्चे, तू मुफ्तियों से बढ़ गया। हामिद भाई औकात से, हामिद भाई तू मुफ्तियों से बढ़ गया, इसीलिए मैं इन लोगों से बात मुफ्तियों से बढ़ गया। अरे हामिद भाई, इसने मुफ्तियों के बारे में क्या बोला कि तुम मुफ्तियों के पीछे घुसे रहो? मुफ्ती की दिशा बोल रहा मैं, एक मिनट, मैं खंजीर गाली नहीं दे रहा हूँ, साले आम सुन रही है, मैं मुफ्तियों को गाली नहीं दे रहा हूँ, सुना रहा हूँ। तूने जो जुमला इस्तेमाल किया कि मुफ्तियों के पीछे ना घुसो, खबीस की तो यही तो ढाल तू बना रहा है ना। तू सिर्फ ये कह के पूछ रहा है कि नहीं हमारे मुफ्तियों ने फतवा दे दिया। अबे उसकी बात बता। अहमद रजा, जी हजरत, अगर माँ का पीछे ना घुसो, इसके पीछे घुसो, मुफ्ती ने कह दिया मर्दू शैतान सुवर साले खबीस। तरीके से बात होता है हामिद भाई, इस तरीके से बात करने लाए थे आप। तो तूने जो जुमला इस्तेमाल किया, आपने जुमला दिलवा दिया, जुमला क्या इस्तेमाल किया आपने? बहुत बहुत शुक्रिया। जुमला क्या इस्तेमाल किया आपने? बड़ा अच्छा काम किया है। यहाँ पर आपने जूते पड़ेंगे तेरे को, जवाब सुनेगी, कॉन्टेंट दिलाया, रिकॉर्डिंग सुनेगी, अब जूते मारेगी तेरे को। तूने तमाम मुफ्तियों का इनकार कर दिया। फिर मैं तेरे खिलाफ कैसे वीडियो बनाता हूँ? तमाम मुफ्तियों का इनकार कर दिया। तुमने मेरे मर्जी के खिलाफ मेरा पर्सनल नंबर, ये आला हजरत की तालीम है, ये तालीम चैलेंज कर रहा हूँ, सुन, मैं तुझे चैलेंज कर रहा हूँ, सुन, चैलेंज सुन ले, चैलेंज सुन ले। बात करते हो तेरे पिछवाड़े में जितना दम है ना, इल्ली सुन, तेरे पिछवाड़े में जितना दम है, उससे जो हो सकता है वो कर ले जा, कर ले जा। बात करते हो इल्ली की औलाद, तेरे जितना भी दम है ना पिछवाड़े में लगा ले जा, जा इल्ली बाबा, जा इल्ली बाबा। मेरी यही औकात है। लोग सुनते हैं ना, इसीलिए लोग सुनते हैं कि गाली को कितना देता है। तुम लोग इसी तरीके से, तेरी मुनाफिक अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि तेरी मुनाफिक सामने आ गई। तूने अपनी जुबान से कह दिया मुफ्तियों के पीछे ना घुसो। तुम लोग गाली दे सकते हो, बात अहमद रजा भाई, तुम्हारे अंदर इतनी पावर नहीं है। तुम्हारी माँ ने इतने जूते पड़े हैं इसके अंदर, कसम खुदा की इतने लोग सुधर जाएंगे। कर सकते तुम लोग, तूने अपनी जुबान से कह दिया कि मुफ्तियों के पीछे ना घुसो। दे सकते हो गाली, गाली के अलावा आराम को तेरे पीछे घुसे, तुम लोग छूटे हो, अभी बच्चे नए नए पैदा हुए हो और आए हो, अबे तेरा बाप हूँ मैं, तेरा बाप हूँ, सकते हो। तुम्हारी माँ ने वो दूध ही नहीं पिलाया कि अजीम अंसारी का इल्म रद्द कर सको। कौन सी दलील मेरे खिलाफ? तेरे को इतनी दलीलें मांगी मेरे मुंह पे, हराम खोर, तूने एक दलील पेश नहीं की अभी तक। हराम को तू गाली पे गाली दे रहा है ना, लोग सुन रहे हैं। तूने मेरे मुफ्ती इकराम के बारे में क्या बोला कि मुफ्तियों के पीछे तुम घुसे रहो? नहीं करना चाहता, हमारे मुफ्ती हमारे सर का ताज है, हमारे मुफ्ती हमारे दिल का चैन है। तू कहता है मुफ्तियों के पीछे घुसते हो? सुमर कहीं का मरतू शैतान। देखिए सामिन इकराम, ये है अजीम अंसारी इल्ली बाबा। इस हराम खोर ने हमारे आलिमों का जब रद्द करना शुरू किया तो पाकिस्तान के 12 मुफ्तियों ने मुफ्ती अकमल के ताल्लुक से ये फतवा दिया कि इनको तौबा करनी चाहिए, इस तरीके के बयानात स्टेज पे नहीं करने चाहिए। अब ये हराम खोर कहता है कि मुफ्तियों के पीछे मत घुसो, तो तेरे पीछे घुसे। तू कहाँ का आलिम है बे, मरदूद शैतान कहीं के?
तूने जो लफ्ज इस्तेमाल किए कि मुफ्तियों के पीछे मत घुसो, जाहिल के बच्चे, शरीयत आलिम से चलती है, जाहिल से नहीं। तो मतलब तू सारे लोगों को गुमराह करेगा, और जो हमारे मुफ्ती आलिम है, वो जो हमारे सर के ताज है, वो ऐसे ही अरे गए नत्थू कह रहे हैं माज़अल्लाह, और तू ही हकीकत और तू ही सही है। हामिद भाई जी जी, बहुत बढ़िया किया भाई, आपने बात करा के इसकी हकीकत सामने आ गई, मुनाफिकत इसकी आ गई, इसने तमाम आलिमों का इनकार कर दिया। ठीक है ना, बहुत मजा आया। अब देखो इसकी गांड कैसे फाड़ता हूँ। ये सुअर का बच्चा, खंजीर का बच्चा मुनाफिक है, मुनाफिक है ये। जो आदमी ये कहे कि मुफ्तियों के पिछवाड़े में घुसे रहो, सुनो, जो आदमी ये कहे, जब तक इसने बदतमीजी नहीं की थी मैं आराम से बात कर रहा था, इसने मेरे मुफ्ती को बुरा बोला कि तुम लोग मुफ्तियों के पीछे घुसे रहो। पीछे का घुसने का क्या मतलब होता है हामिद भाई? पीछे घुसने का क्या मतलब होता है? वो कहना ये चाह रहा था मुफ्तियों के पीछे मत छुपो। तो ना मुफ्तियों के पीछे नहीं तो तेरे जाहिल के पीछे चलेंगे हम। वो यही कहना चाह रहा था। अरे मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ हामिद भाई, आज की तारीख में किसके पीछे चलोगे? आलिम के पीछे चलोगे या खुद चलोगे? नहीं, आलिम के पीछे चलना पड़ता है आदमी को। आलिम के पीछे चलना, आलिम के पीछे चलेंगे ना तो ये खबीस कहता है तुम मुफ्तियों के पीछे घुसे रहो। पीछे का मतलब क्या होता है मालूम है आपको? कितना गंदा वर्ड यूज किया हरामखोर ने, पता शैतान के बच्चे ने, मरदूद शैतान साला हरामखोर, खिंजीर का बच्चा है। हमारे सुनो, हमारे बड़े बड़े मुफ्तियों ने, होता है क्या? अरे अभी आप फिरका विरका तो छोड़ो, सुनो फिरका विरका तो छोड़ो, बात छोड़ो, अभी हमारे में कोई फिरका नहीं है। ये मुनाफिक का बच्चा बरेलवी है ही नहीं। पहले आपको मैं बताऊं, अहले सुन्नत वल जमात के किसी आलिम को ये मानता ही नहीं है हरामखोर। अगर मानता तो इस तरीके के जुमले इस्तेमाल ना करता कि तुम मुफ्तियों के पीछे घुसे रहो, माज़अल्लाह, समझे? तो पीछे घुसने का मतलब क्या होता है पता है? आला हजरत बोल रहा था, कितनी बार बोला। अरे बिना आला हजरत के और आला हजरत के फतवों को नहीं मानता। इसने जो फतावा रिजविया पेश की, आधी पेश की, पूरी इबारत इसको बोलो हरामखोर अगर एक बात की औलाद है तो पूरी इबारत लगा। पूरी बात हमारे अख्तर निजामी, मुफ्ती अख्तर निजामी ने पूरी इबारत लगा के इसका रद्द किया अपने चैनल पर। इस हरामखोर ने आधी इबारत लगाई। तो ये और रही ताजु शरिया, सुनो, अरे मैं कह रहा हूँ जाहिल आदमी है साला, ये जाहिल का बच्चा है ये। आवाम को अपने पीछे लेके चल रहा है और मुफ्तियों से दूर करने की कोशिश कर रहा है, आलिमों का रद्द कर रहा है बैठ के, ये खबीस का बच्चा, मरदूद शैतान कहीं का। चलो ठीक है, मुझे गुस्सा इसी बात पे आया, ठीक है, हाँ मुझे गुस्सा इसी बात पे आया। पीछे का जो लफ्ज इस्तेमाल किया ना इस मरदूद शैतान ने, तब गुस्सा आया मेरे को हरामखोर में। ठीक है, तो ये ताजु शरिया कौन है? ताजु शरिया आला हजरत के पोते, कर पोते, नाम सुना है मैंने उसे। हाँ, अख्तर रजा रहमतुल्लाह। जो ये हरामखोर का बच्चा कह रहा था ना तुमसे कि मैं बरेलवियत के अलावा भी लोगों को मुसलमान समझता हूँ, तो उसके सामने वो वजाहत मैंने तुम्हारे सामने कर दी। ठीक है, वजाहत मैंने तुम्हारे सामने कर दी, हरामखोर ने अपने मुंह से बोल दिया, ये पलट गया है। हाँ तो यही तो ये मुनाफिकत है ना। तुम्हारे सामने मिट्टू मियाँ बनेगा, कोई देवबंदी फोन कर रहा है तो उसको मिट्टू मियाँ बन रहा है, हम फोन कर रहे हैं तो हमारे सामने मिट्टू मियाँ बन रहा है। और हालांकि हम तो देवबंदी, जो जितने देवबंदी है सबको काफिर नहीं कहते, हम उसको गुमराह कहते हैं जो गलती से भूल चूक से इनके पीछे चला जाए। लेकिन इनकी किताबों को पढ़ने के बाद और इनकी किताबों को दिखाने के बाद अगर ये उनके कुफर को देख ले और फिर भी उनको मुसलमान कहे, हमारा फतवा उसके ऊपर है सिर्फ। समझ में आई बात? के ऊपर नहीं है, जो इनकी बातों को नहीं मानता उनके ऊपर हमारा कुफर का फतवा नहीं है ना, जो इन इबारत को ना माने और इनके पीछे नमाज ना पढ़े। इनके पीछे ना नमाज पढ़नी है, देवबंदी आलिम के पीछे, वहाबी आलिम के पीछे, शिया आलिम के पीछे, राफजी आलिम के पीछे, कादियानी आलिम के पीछे ना नमाज है। हुजूर की हदीस मुबारक है कि इनके पीछे ना नमाज है और इनको सलाम कलाम भी नहीं है। ये मर जाए तो इनकी नमाज जनाजा नहीं है, ये बीमार हो जाए तो इनकी इयादत नहीं है। आप भी भटके हुए हो, किसी दिन आराम से बात करना मुझे, मैं समझाऊंगा आपको। चलो ठीक है, गाली गलौज से बात नहीं होगी, आप आराम से मुझसे बात करना, तब मैं आपसे